Good evening and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. In this program today, we will be talking about the targeting of mainstream nationalist leaders by terrorists in a planned manner in Kashmir. In less than a month, terrorists silenced a second nationalist voice in Kashmir. Earlier it was Sarpanch Ajay Pandita, and now, last night, the terrorists killed local BJP leader Wasim Bari, his father and brother outside their residence in Bandipora district. According to the police, it was a pre-planned killing by Lashkar-e-Taiba terror outfit, which is based in Pakistan. These two killings give rise to questions like, are nationalist forces in Kashmir being targeted in a planned manner? Is the government doing enough to protect and promote such voices? In the agenda today, we will pose these questions to two nationalist voices of Kashmir and seek to know the answers from them, since they are the concerned persons on the ground. We have with us Wajahat Farooq Bhatt, founder and chairman of J&K Save Youth Foundation, and Sajid Yusuf Shah, president of JK Youth Society. But before we speak to them, let us have a look at this small report. In yet another killing aimed at silencing the nationalist voices in Kashmir, Pakistan-backed terrorist killed Wasim Bari, a local BJP leader, his father and brother, just outside their residence in Bandipora district late on Wednesday night. Bari was the former district BJP president of Bandipora. Bari has 10 personal security officers, PSOs, to guard him, but none of them were present when the terrorists struck. Police has arrested all the 10 and said they will be dismissed from service. In less than a month, this is the second killing of a nationalist voice in Kashmir. Earlier, the terrorist killed Ajay Pandita, a sarpanch belonging to Congress. Now they silenced Bari, who was a young BJP leader who openly carried the Indian flag, notwithstanding the terror threats. He was the face of BJP in North Kashmir and played a huge role in getting cadres for the party there. The targeting of nationalist voices comes at a time when security forces have been achieving huge successes in neutralizing terrorists, including those pushed by Pakistan into the valley to disturb peace. BJP National General Secretary and parties in charge of Kashmir affairs, Ram Madhav, National Conference leader and former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, Congress and PDP condemned the killings. Soon after the attack, Omar tweeted, "Sorry to hear about the murderous terror attack on the BJP functionaries and their father in Bandipur earlier this evening. I condemn the attack. My condolences to their families in this time of grief. Sadly, the violent targeting of mainstream political workers continues unabated." Former Bandipora MLA and now a founder member of JK Apni Party, Usman Majid, condemned the incident and demanded a thorough probe into the alleged deteriorating law and order situation in Kashmir Valley. How can terrorists come so close and hit their target, which is barely 10 meters away from the police station in the town? The Congress and the PDP also condemned the incident. The PDP tweeted, "Distorted the recurring spate of killing of political worker in Kashmir, while we express our unconditional sympathies with the family. The administration has squarely failed in ensuring adequate security arrangement amid deteriorating security conditions." Bureau Report. So let us welcome Wajahat Farooq Bhatt to our program. Welcome, Wajahat. Thank you, sir. So, how do you see the killing of Wasim Bari? He was a nationalist leader, बीजेपी का एक खास आदमी था वहाँ पे, एक वॉइस था, एक फेस था वहाँ पे बांडीपुरा में. उनकी किलिंग आप कैसे देख रहे हो? जी देखिए, पहले तो मैं जो कल वाकया पेश आया बांडीपुरा में, उस वाकये की मैं मजम्मत करता हूँ. और ये एक पहला वाकया नहीं पेश आया इस हफ्ते में. इससे पहले जो वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपुर एरिया में, उससे पहले अगर देखो बिजबिहारा एरिया में एक वाकया पेश है जहाँ पे एक बच्चे को मार दिया गया. उससे पहले एक सरपंच को मार दिया गया, अजय पंडिता को उससे पहले मार दिया गया. और कल एक ही घर के 3 फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया. और एक चीज की हम जोरदार तरीके से मजम्मत करते हैं. और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक
यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको कब तक टारगेट किया जाएगा? क्या ये सिक्योरिटी होके भी उनको टारगेट किया जाए? ये कब तक यहाँ पे चलेगा? क्या यहाँ पे जितने भी यहाँ पे यहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी यहाँ पे पीस के लिए काम करता है, जो भी यहाँ पे लोगों के लिए काम करता है, जो भी यहाँ पे नौजवान के लिए काम करता है, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। तो आखिरकार हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? तो आखिर आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे जिसके पास सिक्योरिटी है वो सेफ नहीं है, तो आप मुझे बताइए हम कैसे सेफ है यहाँ पे? तो इससे इसलिए जो हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है यहाँ पे, उनको देखना चाहिए कि जो यहाँ पे काम कर रहा है, इनका निशाना हमेशा से ये रहा है कि जो भी यहाँ पे अमन के लिए काम करेगा, जो भी यहाँ पे लोगों के लिए काम करेगा, उनको वो टारगेट करेंगे। तो आज आईजीपी साहब कह रहे थे, अभी मैंने सुना उनको थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे जिसको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो वो एसपी साहब से मिले और सिक्योरिटी ले ले। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आप, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी हमको बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरीड हैं, क्योंकि यू मे ऑल्सो बी टारगेटेड सिंस यू स्पीक नेशनलिस्ट वॉइस। देखिए, सिक्योरिटी जो आज आईजी साहब का जो स्टेटमेंट आया, हम उसको वेलकम करते हैं कि ये पहले आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आज आ गया। जब हमने इतनी सारी जाने गंवाई है, तो आज स्टेटमेंट आया। बट चलो ठीक है, देरी से ही तो ठीक ही है, तो हम उस चीज को वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट दूसरी चीज ये कि आप मुझे बताइए कि जो कल वाकया पेश आया, 3 फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे टारगेट किया गया, उनके पास तो 10 जो पुलिस अधिकारी वहां पे घर पे थे, जो उनके सिक्योरिटी में थे, बट फिर भी ये वाकया पेश आया। हमें ये देखना है कि जो वाकया पेश आ रहे क्यों आ रहे, और उन लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इस चीज के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जल्द। तो फिर यहाँ पे जो हालात यहाँ पे आज बन रहे हैं यहाँ पे, वो जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे आज जो कल वाकया पेश आया बांडीपोरा में, तो इससे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो उनको भी डर लग रहा है कि आप काम करें कि ना करें। तो इस चीज से एक मैसेज गई है कि देखिए, यहाँ पे जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी यहाँ पे नेशनलिस्ट थे, वो सेफ नहीं है। तो इस चीज को आपको मद्देनजर रखना होगा। जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज है, उनको ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि देखिए जनाब, आप अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको आप ये अश्योर कीजिए कि आप सेफ हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमें टारगेट किया जा रहा है। चलिए, आप जैसे बोले कि टारगेट किया जा रहा है, तो लेट अस आस्क साजिद नाउ। साजिद हैज जॉइंड अस। तो साजिद, हाउ डू यू सी दिस किलिंग? क्या ये नेशनलिस्ट वॉइसेस को साइलेंस करने का एक प्लान्ड मैनर है, प्लान्ड डिजाइन है? First of all, I would like to thank your channel that who have given me chance to speak. तो जैसे कि आपने अभी बात की कि जो नेशनल वॉइस है यहाँ पे, उनको कश्मीर में कैसे सप्रेस किया जाता है। जरा डिफरेंट, इसके पीछे डिफरेंट कुछ स्टोरीज है, मैं उसके पीछे जाना नहीं चाहता, वो हम सबको पता है। देखिए, जैसे कश्मीर में जो भी आज कश्मीर की एक ट्रेजेडी रही है, जो भी यहाँ पे कश्मीर का जो युवा है, जो पीस के लिए काम करना चाहता है, जो भारत के हित में बात करना चाहता है, उनको निशाना बनाया जाता है। जैसे कि कल की हमारे सामने एक दुर्घटना जो हुई है बांडीपोरा में वसीम बारी को उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से उसको टारगेट बनाया गया। और मुझे लगता है सबसे दुख की चीज कहा कि एक घर में एक परिवार के 3 सदस्यों को निशाना बनाया गया। हालांकि उनकी बहन को भी कुछ इंजरीज हुई है, उनको भी लगी है। बट ये आप सोच सकते हो कि इन दहशतगर्दों का कितना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि ये लोग आप एक घर के एक सदस्य को नहीं, एक पूरी फैमिली को टारगेट बना लेते हैं। इट्स ऑल देयर फ्रस्ट्रेशन एंड नथिंग एल्स। और जैसे आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नेशनल वॉइसेस है, एक करके उनको सप्रेस किया जाता है। हालांकि कश्मीरी जो यहाँ के युवा है, वो उन्होंने एक ठान ली एक चीज कि हम बात करेंगे और खुल के हम साथ में आएंगे। कितने लोगों को ये लोग निशाना बनाएंगे, ये एक इंसान को टारगेट करेंगे और यहाँ पे कश्मीर के 10 युवा लोग इनके खिलाफ मीडिया पे क्या पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। अच्छा साजिद, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट, जितना मुझे कश्मीर को कवर किया है एंड ऑल दैट, एंड वट एवर आई नो अबाउट कश्मीर, I feel that 95% of Kashmiris want peace and go about their lives peacefully. They don't want terrorism, they don't want violence. आप कैसे देखते हैं ये मेरा व्यू?
देखिए अजय साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने खुद की ग्राउंड की बारे में बात करी। देखिए मैं खुद एक टेरर विक्टिम हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। यहाँ जितने भी यहाँ पे कश्मीर में किलिंग हुई है आज तक, मुझे लगता है वो दर्द मुझसे ज्यादा कोई इस चीज को जान नहीं सकता। जैसे आपने भी कहा कि आप ग्राउंड पे रहे हैं, यहाँ पे कश्मीर में ऐसी एक ट्रेजेडी रही, यहाँ पे एक एक करके हर किसी को निशाना बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वसीम बारी की बात करें, ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी आज तक हत्या हुए। लेकिन क्या होता है आजकल, मैं आपको बड़ी सॉरी टू से दिस थिंग कि यहाँ पे एक्चुअली कश्मीर की एक ट्रेजेडी है। यहाँ लोग एक दिन याद रखते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी, 2 दिन याद रखते हैं उस जो हमारे टीवी न्यूज चैनल है वो टिल प्राइम टाइम डिबेट तक उनको याद रखते हैं। हालांकि जो उनके घर वाले होते हैं उनको पूरी उम्र उन चीजों को याद करते हैं, उनको उस दुख से गुजरना पड़ता है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं मतलब आपकी चैनल के माध्यम से भी एक गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, एडमिशन को अपील करना चाहता हूँ कि आइए, अभी भी आपके पास मौका है, अपने लोगों को ढूंढिए जो लोग यहाँ पे विक्टिम बने हुए हैं। ऐसा कल का न हो कि ये लोग एक एक चीज को नजरअंदाज करते रहेंगे और कश्मीर में आतंकवाद, जो पाकिस्तान फोर्स में आतंकवाद है, ये एक एक यहाँ पे कश्मीर की हत्या करेंगे और यहाँ पे कश्मीर में कोई पीस एक्टिविस्ट, कोई सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कोई प्रो इंडियन कश्मीरी बचेगा नहीं। अच्छा, वजाहत पे आई विल कम बैक टू यू। वजाहत, जैसे हमको सबको पता है कि ये किलिंग्स कौन करता है और कौन कराता है, आई मीन पाकिस्तान कराता है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। वही पाकिस्तान बोलता है कि हम तो कश्मीरियों का भला चाहते हैं, हम कश्मीरियों के लिए ये करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, बट वही गन, जो पाकिस्तान का गन कश्मीरियों को मार रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कैसा कैसा उनका वो है? जी देखिए, अगर आप मैंने इससे पहले भी ये जिक्र किया, आपने आपकी नोट्स में लाया कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड से जो यहाँ पे हमने जाने गवाई है कश्मीरियों में, मोर देन 50,000 यहाँ पे मिलिटेंसी या टेररिज्म की वजह से यहाँ पे लोगों ने जाने गवाई है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, जो आप पाकिस्तान की बात करते हो, जो उनकी ये कि हम कश्मीर के भला चाहते हैं, आप मुझे बताओ कि उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई शख्स आपको कुछ आपके लिए कुछ बड़ा बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तो आपके बारे में कैसा सोच रहा है, वो आपके बारे में कैसा अच्छा सोच रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जो मुल्क हमारे लिए, हमारे नौजवानों की मौत के जिम्मेदार है, वो कैसे हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और वो कैसे हमारे होंगे। तो मतलब मेरे कहने का, पूछने का ये मतलब था कि उन्हीं कश्मीरियों को जिनके लिए आप कह रहे हो, वर्ल्ड को बता रहे हो कि हम कश्मीरियों के लिए के हित में काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं कश्मीरियों को आप मार रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ। उसमें ये जो डाइकोटमी है, उसमें दोगलापन है जिसको बोलते हैं, वो मैं पूछ रहा था। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो तो पिछले 30 साल से यही दोगलापन दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो अभी आप रिसेंटली उनका जो प्राइम मिनिस्टर उनका स्टेटमेंट आया था कि उसामा बिन लादेन को वो शहीद करार देते हैं, उससे पहले वो उसको टेररिस्ट करा देते हैं। तो ये उनका तो यही जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहाँ पे होगा तो वो उसी के रिलेटेड बात करेंगे। दूसरी चीज में यही कहना है कि जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनको अब समझना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ कौन है, हमारा भला कौन चाह रहा है और हमारे हित में काम कौन कर रहा है। तो ये कश्मीरियों तक है। अगर यहाँ पे वो कश्मीर के मैं पीस अमन वो देखना चाहते हैं तो कश्मीरियों को देखना चाहिए, तो किसको सपोर्ट करे और किस आइडियोलॉजी को, किन पार्टीज को सपोर्ट करे। और अगर वो मैं सोचे दोहराना चाहता हूँ, ये सारा का सारा कश्मीर पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है कैसा रहे। वो कश्मीरी पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें आगे, किसको सपोर्ट करें, किसको अपना, अगर हमें कोई अगर जो कुछ कोई हमारे कश्मीरी के भाइयों को कोई गलत मैसेज दे रहा है। अब आपने अभी बोला कि वहां से वो दुनिया को बोल रहे कि हम तो कश्मीर के हक में बात करते हैं, मगर हकीकत में वैसे तो है नहीं। आज आप देखोगे पिछले 1 महीने में यहाँ पे 5 की 6 जाने गई है, तो आप मुझे बताओ कि वो तो वही करवा रहे हैं यहाँ पे उनकी प्रॉक्सी जो यहाँ पे मिलिटेंट्स है। आप मुझे बताओ कि वो कैसे हमारे भला सोचेंगे। बट ये कश्मीर को अभी सोचना है कि हमारे साथ कौन है और कश्मीर को सोचना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा रहे। जी, I will turn to Sajid. Sajid, see, it is not only targeting of the nationalist voices. जो पाकिस्तानी गन है, it is killing even innocent people. जो मतलब अभी लास्ट वीक वी सॉ अ मैन गोइंग अराउंड, अपना वहाँ जा रहा था, अपने पोते को लेके, उसको टेरर अटैक में मारा गया। इस तरह से कितने हजारों लोग मारे गए हैं। तो जैसे वजाहत अभी कह रहे थे कि कश्मीरियों को समझना पड़ेगा कि उनका भला कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है।
तो क्या करना चाहिए कि कश्मीरी को ये समझ आ जाए कि उनका बेनिफिक्टर कौन है और कौन नहीं? देखिए अजय साहब, जैसे वजह साहब ने भी बात की, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूँ, इनकी एक एक पॉइंट का मैं इंडोर्समेंट करता हूँ और दूसरी चीजें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे वजह साहब ने कुछ पॉइंट्स बोली, एंड आप मुझे ये चीज पहले बताइए, मैं उन लोगों को भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो ये दावा करते हैं हम कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, और वो दावा करते हैं हम कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के खून से और कश्मीर को मरवा के वो कश्मीरियों को कह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप अगर हम वसीम बारी की बात करें, जो लोग जहाज के नाम पे गन उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कश्मीरी कौम के लिए लड़ रहे हैं, वो तो कश्मीरी को मार रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कॉप हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, या कोई भी कश्मीरी हो। मेरे लिए जब कश्मीरी की बात करता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित को उसमें इंक्लूड करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो इक्वली, जितना कश्मीरी मुस्लिम है उतना कश्मीरी पंडित मेरे लिए बराबर इक्वली उसी चीज में उनका नाम लेता हूँ। जैसे आपने अभी बात की कि नेशनल्स यहाँ पे जितने भी नेशनल्स है, ऐसा नहीं आप गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको अभी डिबेट करने से पहले ये चीज बोला कि गवर्नमेंट को ये चीज समझना चाहिए कि आपके अपने लोग यहाँ पे कौन है। आज तक 30 साल से क्या हुआ, कुछ ऐसे अपराध है यहाँ पे जिनने 30 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट किया आजादी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नाम पे, और उन लोगों ने इस धोखे पे रख के यहाँ पे कश्मीरियों का खून कर दिया। अब मुझे लगता है C70 एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब तो ये यूटी बन गई, अब तो इट्स डायरेक्ट इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ दोज कश्मीरीज who are working for the peace process in the Kashmir Valley. तो आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा नहीं कर पा रही है टू प्रोटेक्ट पीपल, नेशनलिस्ट वॉइसेस? देखिए पहली बात एक चीज है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर वसीम बारी की जो किलिंग हुई, पहली बात मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि वसीम बारी की जो किलिंग हुई, उनके 3 घर से 3 जनाजे निकले कल, दैट में 3 जनरेशन उनके खत्म हो गए, एंड उसकी वजह से क्या, उसके जितने भी यहाँ पे प्रो नेशनलिस्ट वॉइसेस थे, यहाँ जो पार्टी वर्कर्स, यहाँ कोई पॉलिटिकल जिसकी अपनी आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके दिल में भी एक डर पैदा हुआ कि जब इनकी फैमिली से होता है तो दैट मींस कल को मेरे साथ हो सकता है, कल को किसी और के साथ हो सकता है, एंड गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स कि हम कैसे इस चीज को अवॉइड करें। देखिए मैं आपको इस चीज के बारे में, मैं आपको प्रॉब्लम्स नहीं, मैं आपको कुछ सोल्यूशंस भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए फॉर गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे लोगों को जानिए, जैसे जो भी यहाँ पे पैट्रियोटिक कश्मीरीज है, यहाँ जिनकी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उनको आप सिक्योरिटी कवर दीजिए और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। जितना आप उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, जितना आप उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी बुनियाद पे जो बाकी यहाँ पे कश्मीरीज है, वो जब उनकी तरह देखेंगे इनको गवर्नमेंट की यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, तो वो भी अपना नैरेटिव जो अपना प्रो नेशनल जो उनका स्टैंड है, वो आप पूरी दुनिया के सामने वो रखेंगे। तो वजाहत जैसे साजिद अभी कह रहे थे कि नेशनलिस्ट वॉइसेस अंडर थ्रेट है, हम आपको भी पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कि खतरा बना हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या या स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या ये वेकअप कॉल नहीं है अभी भी? क्या अभी भी नहीं जागेंगे वो? जी देखिए, जैसा कि साजिद साहब ने बोला कि हर किसी नेशनलिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या उनकी फैमिलीज को। तो देखिए अगर कल की बात करें तो कल बानीपुरा में जिसकी हत्या होगी, 3 मेंबर्स की, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी हत्या, बट उनके पास सिक्योरिटी ऑलरेडी थी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी देनी चाहिए उन नेशनल्स को जो काम करे, जो ग्राउंड पे काम करे, चाहे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2016 की अगर से बात करें हम यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे हम पूरे हर साल यहाँ पे 2 या 300 टेररिस्ट को, यहाँ पे मिलिटेंट्स को आप कह लीजिए कि मार दिया जाता है, बट अगले साल वही 200-300 मिलिटेंट्स टेररिस्ट वाला हमें फिक्स मिल रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है कि जहाँ पे हर साल यहाँ पे टेररिस्ट आगे फिर से बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वी आर किलिंग टेररिस्ट बट नॉट टेररिज्म। हमें टेररिज्म को खत्म करना है, जड़ से हमें खत्म करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, उन चीजों के, उन लोगों के खिलाफ आप कदम उठाइए, तभी ये बिजनेस जो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पे वर्कआउट करिए। आप टेररिस्ट को तो मार रहे हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, वो तो मतलब आपने कल को इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया, बट आप मुझे बताइए अगले दिन और एक टेररिस्ट ज्वाइन करता है एंड वो किसी और फैमिली को टारगेट करता है, तो हम इसके बाद उनको मारोगे तो फायदा कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि आपको टेररिज्म यहाँ पे कैसे खत्म करना है। आपने तो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपने ये बोला था कि आर्टिकल हमने इसलिए एप्लीकेट किया कि यहाँ पे ये चीजें खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म होगा, यहाँ पे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेटिज्म खत्म होगा। तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, वो चीजें आप ग्राउंड पे लाइए, तो तभी मुझे लगता है कि ये चीजें हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे पीस फिर से प्रिवेल होगा।
तो जो ये किलिंग हुई वसीम बारी की या उससे पहले अजय पंडिता की हुई, तो क्या ये जैसे नेशनलिस्ट वॉइसेस, फिर मैं आऊँगा इसी बात पे, क्या इसका मतलब कि ये कोई सेटबैक है क्या? जैसे आप जैसे लोग, जैसे आप जैसे काम कर रहे हो नेशनलिज्म के लिए या अगेंस्ट ड्रग और वट यूथ के लिए, पीस के लिए, तो ये क्या सेटबैक है आप जैसे लोगों के लिए जो ऐसा इस काम में आना चाहते हैं? उनको डर लगेगा या क्या करेगा? वजह साहब आप बताइए। जी देखिए, जैसे कि साहिल साहब बोल रहे हैं कि ये अभी ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स करवा रहे हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइज स्कैम रही थी करनी, चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे सेंटर हो, तो दिन ब दिन जब हमने स्टार्ट किया तो पहले कुछ लड़के आए थे, आज अगर हमें पूरी कश्मीर में हमारी टीम बनी हुई है, तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। बट अगर आप देख करेंगे, खुदा ना खासा अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आया, तो वो जो हमारी बीच पीछे से टीम है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो उनका मेन टारगेट ही होता है कि जो किसी टीम को लीड करता है उनको टारगेट करना, बिकॉज दे डोंट वांट कि यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो, ऐसे लोग खड़े हो जो पीस की बात करे, जो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करे, जो अमन की बात करे, जो हक की बात करे, बिकॉज उनको खतरा वही लोग है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जल्द से जल्द कुछ ऐसे इंतजाम ग्राउंड में लाने पड़ेंगे, लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें करने, नेशनलिस्ट के लिए करना चाहिए, मैं सिक्योरिटी का मैं बोल रहा हूँ, और उन लोगों के लिए सख्त से सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे जो यहाँ पे टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो किसी भी किलिंग होती है उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इन चीजों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, तभी यहाँ पे अमन आएगा। अच्छा, मैं सज्जाद से पूछूंगा कि जैसे हम कश्मीर की, साजिद सॉरी, जैसे हम कश्मीर पाकिस्तानियों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चलता है तो पाकिस्तान खूब हू हल्ला मचा लेता है पूरा दुनिया में कि ये हो गया, वो हो गया, कि एट्रोसिटीज़ हो गई। लेकिन जब कश्मीरियों का खून बहाते हैं वो, तब उनको ये ऐसा एहसास नहीं होते क्या? आप उनके जैसे आप कश्मीरी वॉइस है वहाँ से, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए, कुछ लोग बेशर्म होते हैं, उनको कितना भी आप समझाए वो कभी समझने वाले नहीं है। जैसे आपने कहा कि जब इंटरनेट यहाँ पे कश्मीर में बंद था, तो कैसे मतलब उनके पाकिस्तान स्पॉन्सर जो इनके प्रोपेगेंडा ISPR की मशीनरी जो बैठी हुई है, चाहे बाहर में बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई, वो अपना काम कर रहे हैं। आज इतने पिछले लगभग 10-20 साल तक, मुझे लगता है आने वाले वक्त में क्या 20 साल तक वो आगे कंटिन्यू करते रहे, वो कभी अपना काम रुकते नहीं। उनका इसी चीज से लोगों को मरवाने पे उनका बिजनेस चलता है, वो और आगे किसी चीज को वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने अभी कुछ बातें बोली कि यहाँ पे जो पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है वो यहाँ पे कैसे काम करते हैं। देखिए, इन लोगों ने अपनी सोशल मीडिया को अपना एक बेस कैंप बना दिया है। जैसे कुछ बात में हिंदुस्तान के खिलाफ करके वो हारे गए, अब इनको लगा कि हम सोशल मीडिया वार, साइबर वार करके हम हिंदुस्तान के खिलाफ हम जंग कर लेंगे। ये लोग ऐसे ऐसे, मैं क्या बताऊँ, मेरे को शर्म आती है सब बोलते हुए। ये लोग इतने बेशर्म है लोग। ये लोग क्या बोलते थे, शिया की जो ये होती है इनकी मुहर्रम जो उनका होता है, उनकी फिक्स लगा के कह रहे हैं देखिए यहाँ पे देखिए कितना कत्ल गारत हो रहा है। ये लोग इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि किसी और का जानवर का खून अगर करते होगा या कुछ होगा उसको नहीं कह रहे, देखिए इंडियन आर्मी ये कर रही है। इनका आप, मुझे लगता है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, उनको ये समझने की जरूरत है कि आज अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट कश्मीर के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए थ्रेट है, कल कोई किसी और मुल्क के लिए बन सकता है, परसों किसी पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बन सकता है। Until and unless अगर इसको वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज को नोट नहीं किया, आने वाले वक्त में पाकिस्तान स्पॉन्सर पूरी दुनिया को खा लेगा। I am convinced that this gun has been introduced in Kashmir by Pakistan, and till it ends, this gun, Pakistani gun withdraws from Kashmir, there can't be any peace in Kashmir. Thank you so much. हमारा टाइम खत्म हो रहा है. Thank you so much Wajahat and Sajid for speaking to us. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I will be back with another interesting topic tomorrow. Till then, goodbye.